A very good afternoon, dear readers, dear listeners, dear followers, and all of you. I welcome to all of you in next upcoming video. And now today's video, or in this video, we will discuss about the character, the world famous play, The Merchant of Venice, and the character's name is Shylock. प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों और चैनल को सुनने वालों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक के बहुत ही प्रसिद्ध पात्र की, जिस पात्र का नाम है शाइलॉक। इसको हम और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ताकि समझने वालों के लिए जो आंसर लिखना है आपको, वो आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी आपको क्लियर होता चले और पात्र के बारे में आप हिंदी में आसानी से उसको समझ भी सकें। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द कैरेक्टर। एज वी नो दैट शाइलॉक कम्स इन द ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस विद मैनी ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स। As we see that Shylock was a rich Jew, a moneylender, a malicious man, a pretender, and a heartless, cruel man. As all the readers having read the complete drama, then we can say that Shylock has been seen wrongly by the readers or those who given justice about his character. I think they gave something wrong about him. Shylock was a greedy fellow. He loved money more in his life, and he lended money to the needy ones, having taken high interest rate charges. So he became more and more rich in his life. Even he doesn't give cash amount to his lonely daughter Jessica for her personal expenses. So there was lonely father in the world who was Shylock, whose real daughter wants to leave him, wants to leave his home or palace, and hates him more. Shylock, when Jessica leaves palace of her father, she has taken handsome cash amount, jewels, diamonds, golds, and many things what she can get at that time, or what she could get at that time, and leaves the palace and goes away with her lover Lorenzo, a Christian. As Shylock knows about it, he starts crying in a very loud voice, "Oh my ducats, oh my gold, oh my money, oh my jewels, oh my diamonds." And at last he remembers his lonely and loving daughter Jessica. "Oh my daughter, where are you gone?" Having knowing or known all this, Shylock appeals before Duke to search his daughter, and he claims that Bassanio starts his journey to Belmont, and Jessica and Lorenzo are with him. Antonio disproves this claim of Shylock, and Shylock defeats and accepts his defeat. Next, Shylock hates the Christian because he was a harder follower of Judaism. He thinks that Judaism is the noblest and the best way to follow in this world, and there is no way. So he more hates to Christians, and especially Antonio, because Antonio lends money to the needy ones without taking
any single rupee of interest charges, so the interest rate of Venice city got down and Shylock's business got down day by day. This is the cause of Shylock's hating to Antonio more and more, and so Shylock plans to kill Antonio by signing a bond, and Antonio has signed on it when he takes loan to Shylock to help his best friend Bassanio. How much Christian hate Shylock? This proves here that Antonio many times addresses Shylock a dog, a rascal, in open street, openly and publicly. How much Shylock hates Christian? This proves here that when Bassanio comes to his house to invite him for dinner, Shylock replies to him that he would walk with them, he would talk with them, he would business with them, but he would not or he cannot pray with them, he cannot eat with them, or even he cannot drink with them. All these things proves here that Shylock hates Christianity and Christianity hates Shylock. It was the ill fate of Shylock that, having made a very sharply plan against Antonio to kill him, having been signed a bond, but at last in the court before Duke, Shylock was defeated by Portia in an argument before Duke, according to the Venice city's law, according to the laws of Venice city. And Shylock had to accept his defeat and had to accept Christianity, and his whole life depending on the mercy of Duke in the court. Shylock at last lost his property, lost his palace, lost his religion, even he had lost his lonely and loving daughter Jessica, and there was nothing left with him or with Shylock. And this type Shylock's character appears in the drama The Merchant of Venice, and Portia using her intelligence and Shylock who demanded justice but at last was defeated. प्रिय छात्रों, प्रिय साथियों, प्रिय दोस्तों और प्रिय सभी लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को पसंद करते हैं, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है, उन तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। आइए हम और आप बात कर रहे हैं सबसे एक निगेटिव किरदार की, एक विलन की, जिसका नाम है शाइलॉक और जिस किरदार को उसने निभाया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित एक बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। शाइलॉक का किरदार जैसा कि हमारे सामने नज़र आता है, संपूर्ण ड्रामे को पढ़ने के बाद जैसा कि शाइलॉक का पूरा किरदार, उसका पूरा चरित्र खुलकर सामने आ जाता है। प्रारंभ में ये पता चलता है कि शाइलॉक जो है वो चूँकि एक यहूदी व्यक्ति है, यहूदियत को मानता है और उसको ये लगता है कि यहूदियत श्रेष्ठ है और इसके अलावा संसार के जितने भी धर्म हैं, जितने भी तरीके हैं, वो सभी बेकार हैं, व्यर्थ हैं और सभी लोगों को यहूदियत को मानना चाहिए। और सबसे ज़्यादा शाइलॉक जो है वो क्रिश्चियनिटी से नफरत करता था। क्रिश्चियनिटी से नफरत करने के दो कारण थे। पहला कारण ये था कि शाइलॉक जो है वो एंटोनियो से सबसे ज़्यादा नफरत करता था और एंटोनियो क्रिश्चियन था। एंटोनियो से नफरत करने की पहली वजह ये थी कि एंटोनियो ने
लोगों को जो एंटोनियो पैसा उधार देता था वो बगैर ब्याज चार्ज किए देता था, जिसकी वजह से शाइलॉक चूंकि एक मनी लेंडर भी था, एक रिच जीव था और एक हार्टलेस क्रूल मैन था, एक मैलिसस मैन था, एक प्रिटेंडर था, यानी दिखावा करने वाला ज़्यादा था, मन से वो साफ सुथरा व्यक्ति नहीं था। वो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था, वो लोगों से नफरत करता था, वो मनी लेंडर था, लोगों को पैसा उधार देता था, बहुत धनवान व्यक्ति था, यहूदी था, लेकिन ईर्ष्यालु था, लोगों को पसंद नहीं करता था, लोगों से प्यार नहीं करता था। यहाँ तक कि शाइलॉक की अपनी खुद की पुत्री जेसिका, जो कि उसको पसंद नहीं करती थी, उससे नफरत करती थी और उसका घर छोड़ देना चाहती थी और उसको छोड़ देना चाहती थी, और अंत में वो उसको छोड़ भी जाती है। शाइलॉक का किरदार इस तरीके से भी प्रतीत होता है कि शाइलॉक क्रिश्चियनिटी से इतनी ज़्यादा नफरत करता था कि जब उसको ये पता चलता है कि उसकी पुत्री लॉरेंजो एक क्रिश्चियन के साथ भागी है, तो इसका इल्ज़ाम बेसेनियो पर लगा देता है कि उसकी पुत्री को भगाने में लॉरेंजो के साथ बेसेनियो का हाथ है। लेकिन शाइलॉक अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाता है और अंत में पराजित होता है। शाइलॉक क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत करता था, ये इस बात से साबित होता है कि जब शाइलॉक के पास एंटोनियो पहुंचता है उससे पैसा लेने के लिए, तो शाइलॉक किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचता है एंटोनियो को मारने के लिए, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, और शाइलॉक किस प्रकार से उससे एक बॉन्ड पर साइन करवाता है और उस बॉन्ड के माध्यम से शाइलॉक एंटोनियो को मारने का प्रयत्न करता है। लेकिन अंत में पोर्शिया के अपेयर होने के बाद कोर्ट में आर्गूमेंट्स जो होते हैं, जो बहस होती है, जो मामले कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, वेनिस शहर के जो नियम और कानून होते हैं, उन तमाम कायदे कानून के मुताबिक शाइलॉक अंत में मुकदमा हार जाता है, वो बात अलग थी। लेकिन शाइलॉक ने अपनी तरफ से क्रिश्चियनिटी को डिफीट करने में कोई प्रयत्न छोड़ा नहीं, कोई कोशिश उसने छोड़ी नहीं, जितना कि वो प्रयत्न कर सकता था और अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश वो कर सकता था, वो तमाम कोशिशें शाइलॉक ने अपनी तरफ से क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने के लिए और क्रिश्चियनिटी को हराने के लिए उसने करी हैं। क्रिश्चियनिटी से शाइलॉक कितनी नफरत करता था, ये इस बात से भी साबित होता है कि जब बेसेनियो उसके दरबार में उसके घर उसको दावतनामा देने के लिए पहुंचता है कि बेसेनियो के घर में एक डिनर का फंक्शन है। बेसेनियो चाहता है कि शाइलॉक उस फंक्शन में आमंत्रित हो और आए। शाइलॉक उसको जवाब देता है कि मैं जो हूँ वो आप लोगों के साथ बिजनेस कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ टहल घूम कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ खान पान नहीं कर सकता, आप लोगों के साथ ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है। ये साबित करता है कि शाइलॉक क्रिश्चियनिटी से कितनी ज़्यादा नफरत करता था। उसके अलावा शाइलॉक का ये दुर्भाग्य ही था कि बहुत प्लानिंग से, बहुत षड्यंत्र, बहुत शार्प माइंडेड होकर शाइलॉक ने एंटोनियो के खिलाफ पूरा एक प्लान किया था उसको मारने के लिए, और एंटोनियो के साथ साथ वो तमाम लोगों को उसने दुख देने का प्रयत्न किया था जो एंटोनियो से जुड़े हुए थे, जैसे कि बेसेनियो, लॉरेंजो, सेलेरियो, पोर्शिया, वो तमाम लोगों को शाइलॉक ने एक दुख देने का प्रयत्न, अपनी कोशिश जो है की थी। लेकिन ये शाइलॉक का दुर्भाग्य था कि शाइलॉक दरबार में, कोर्ट में ड्यूक के सामने पराजित होता है, और अंत में उसकी पराजय का परिणाम ये निकलता है कि शाइलॉक अंत में अपना सम्मान जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसका, वो भी खो देता है। शाइलॉक का अपना जो एक सम प्रॉपर्टी थी, शाइलॉक को वो प्रॉपर्टी भी क्रिश्चियनिटी को जो है वो दान करनी पड़ती है और उसको वो देनी पड़ती है, और आधी प्रॉपर्टी उसको अपनी पुत्री जेसिका और लॉरेंजो के नाम करनी पड़ जाती है और आधी प्रॉपर्टी वेनिस स्टेट को उसके नाम करनी पड़ जाती है। शाइलॉक अंत में यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी खो देता है, अपनी संपत्ति को भी खो देता है, अपने धन को भी खो देता है, अपने महल को भी खो देता है, और यहाँ तक कि उसका जीवन जो है वो ड्यूक की दयालुता पर निर्भर कर जाता है अंत में। इसके अलावा शाइलॉक को जो है वो अपना धर्म त्याग कर अंत में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पड़ जाता है। इससे बड़ी बदनामी का कारण शाइलॉक के लिए शायद उसकी कैरेक्टर की निगेटिविटी का शायद इससे बड़ा परिणाम और परिमाण नहीं हो सकता था कोई, कि शाइलॉक कितना निगेटिव किरदार था, कितना निगेटिविटी को जो है वो इम्पोज कर रहा था अपने ऊपर, कि लास्ट में वो लोगों को हराते हराते, लोगों को हराने का प्लान करते करते स्वयं कब हार गया उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। वो केवल पूरे तमाम लोगों की बात को अंत तक जो है वो इनकार करता रहा कि उसे सिर्फ न्याय चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में एंटोनियो को मारने का षड्यंत्र चल रहा था। ड्यूक की बात को भी यहाँ तक कि उसने इनकार कर दिया, ड्यूक की बात को भी उसने नहीं माना। ड्यूक ने भी उसको समझाने का प्रयत्न किया था कि एंटोनियो को माफ़ कर दो और तुम 2-3-4 गुना जो पैसा लेना चाहते हो उस पैसे को लेके इस मुकदमे को समाप्त कर दो। लेकिन शाइलॉक ने ड्यूक की बात को भी इनकार कर दिया था, पोर्शिया की अपील को भी उसने ठुकरा दिया था। वो केवल अपने षड्यंत्र को जो है वो सफल बनाने का प्रयत्न करता रहा और अंत में खुद ही उस षड्यंत्र का शिकार हो गया। लेकिन पूरे ड्रामे को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं ये भी प्रतीत होता है कि शाइलॉक निगेटिव
जो इम्पोज था उसका एक नेगेटिव, जो पर्सनालिटी थी उसकी, जो एक अपीयरेंस था उसका पूरा, वो नेगेटिव था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शाइलॉक के साथ एक अन्याय भी हुआ था, और वो अन्याय ये था कि वो तमाम लोग जो शाइलॉक के अगेंस्ट थे, वो सभी लोग एक समुदाय से कहीं ना कहीं संबंध रखते थे, वो सभी लोग कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, और शाइलॉक एक अकेला व्यक्ति ऐसा था जो ज्यूइज्म को फॉलो करता था। और कहीं ना कहीं ये जो क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज्म की जो शत्रुता थी आपस में, एक दूसरे को जो नापसंद करने का एक जो मनोभाव था लोगों के दिमागों के अंदर, और इसके कारण भी कहीं ना कहीं शाइलॉक को निगेटिव जितना कि वो था नहीं उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश की गई, और तमाम प्रकार की चीज़ें इस प्रकार से क्रिएट करी गई कि शाइलॉक जो है वो थोड़ा सा उत्तेजित होकर, थोड़ा सा व्याकुल होकर, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में कुछ ऐसी हरकतें करे जिससे कि शाइलॉक का किरदार नेगेटिव साबित किया जा सके। और इस प्रकार से क्रिश्चियनिटी जो है वो अंत में कहीं ना कहीं शाइलॉक के किरदार पर हावी होती है, और इस प्रकार से शाइलॉक के किरदार का अंत हो जाता है।